Hello students, let's continue the same exercise 1.5. Today is chapter 1 lecture 8 exercise 1.5 question 4. Very important questions. This question is practically basically law proving. Fine. We have to prove a law which is De Morgan's law. This law can be proved in three different ways. One, this is the easiest way. When we are taking numbers and proving De Morgan's law has two property to prove that A union B complement is equal to A complement intersection B complement, and A intersection B complement is equal to A complement union B complements. So De Morgan's law basically consists of these 2 points. So we have to prove both the points in this. By using number is the simplest. Then this is a question 4. When we are using the number to prove the De Morgan's law. Then in question 5 we are proving this De Morgan's law by using Venn diagram. That is slightly better. Then there is one more method to prove the De Morgan's law, that is using arbitrary element, which we have given in the B booklet, which is not there in NCERT standard, little plus level. But if you prove De Morgan's law both the points using arbitrary element, that means you have a very good control on a sets. Do see to it that these 2 points which are given in NCERT, which are comparatively easy, should be done in a class, and then side by side B booklet ki working mein will be definitely working to a point where we are proving De Morgan's law using arbitrary element, general element X. Fine. Let's see what he says in this. If universal set is given to us 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 9, A is 2, 4, 6, 8 and B has a set 4 elements, that is 2, 3, 5, 7. So we have universal set, A set, B set. As we already briefed in the last lecture, universal set is a big boss set of all the sets. So this A will be subset of this and B should be also a subset of this. So these two are the subset of this. That's why this is a universal set of these two sets. Fine. Now let's see what basically we need to prove in our first part. The first part of a De Morgan's law, we have to prove that A union B complement is equal to A complement intersection B complement. ध्यान से देखेंगे, जब आप complete का complement ले रहे हैं तो this union will become intersection. और इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा. यहाँ पे कंप्लीट का कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन विल चेंज इनटू इंटरसेक्शन एंड बी कॉम्प्लीमेंट. फाइन. सेम वे सेकंड पार्ट में भी व्हेन वी आर टेकिंग ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, दिस इंटरसेक्शन विल चेंज इनटू यूनियन एंड कॉम्प्लीमेंट विल गो इनटू बोथ द सेट्स, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. पहले फर्स्ट पार्ट को प्रूव करते हैं. लेट्स सी व्हाट बेसिकली ही सेज इन दिस. इफ आई टू सी द लेफ्ट हैंड साइड, that means what is, if I brief you a review part, what is A complement? A complement means universal minus A. So A union B complement कैसे निकालेंगे? Universal minus A union B. ठीक है. अगर A complement निकालते हैं तो universal में से A को माइनस कर देते हैं, और A union B complement निकालेंगे तो क्या करेंगे? Universal minus A union B. So to find this, I have to write universal minus A union B, universal minus A union B. So it's very simple. What is universal set? Universal set is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and minus A union B. What is A union B is? A union B is in this case is what? Common of these 2 कितना आएगा जी? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fine. So union means combine A and B without repetition. 2, 3. 2 is repeated, so we'll written once. Fine. So 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fine. Now this minus this means all the element of this which are not present in this. When you have to take a difference, difference means इसके वो सारे एलिमेंट लिखने हैं जो इसमें नहीं है. तो कौन सा एलिमेंट इसमें नहीं है? 1 इसमें है, इसमें नहीं है, 1 आएगा. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसमें है, नहीं आएगा जी, और 9 आएगा जी. So there we are using the difference. Last class what we studied in lecture 7. The difference between this and this is all element of this which are not present in this, that is 1 and 9. So we got this left hand side A union B complement, answer is 1 and 9.
Fine. Let's see what basically is in the right hand side. Right hand side is A complement intersection B complement. Fine. So फिर से A complement is what? A complement को कैसे लिखेंगे? What will do? U minus A. और B complement को कैसे लिखेंगे? U minus B. ठीक है? U में से A minus करो. U minus A क्या होगा? U minus A is what? U minus A is what set? देखें ध्यान से. U minus A 2 4 6 8 को छोड़ दो, बाकी क्या रह जाएगा? 1 3 5 7 9 and A minus B क्या आ जाएगा बच्चे? U minus B. U minus B. All element of U which are not in B. We've already discussed this point also. तो 2 3 5 7 को छोड़ दो. 2 3 5 और 7 को छोड़ दो. क्या क्या रहेगा? 1 1 1 1 4 6 8 9. 1 4 6 8 9. Fine. So A complement means U minus A. B complement means U minus B. That we've written. So what is now intersection of these two? What is common in these two? यहां से देखेंगे. 1 is here, 1 is here. So this is common. 3 is not common. So intersection means only common. 5 is not common. 7 is not common. 9 is common. So my left hand side final result was 1 9 and my right hand side final result is 1 9. So therefore left hand side is equal to right hand side. Hence proved that A union B complement is equal to A complement intersection B complement. Is this fine? So that's a very very basic point, very simple. So first part of this De Morgan's law is done. Same way we can do the second part of a De Morgan's law, and the same thing is already briefed in my notes also. आप अगर कोई चीज यहाँ की वर्किंग में थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ लगता है, आप उसको दोबारा से रिव्यू करेंगे, एक बार राइट करेंगे, चेक माय नोट्स, मेक श्योर दैट यू शुड नो हाउ टू राइट इट डाउन. नाउ द सेकंड पार्ट इज what he says in second part. A intersection B complement should be A complement union B complement. ध्यान रखना है, ये A intersection B complement है, तो इंटरसेक्शन का बाहर आके सिंबल यूनियन में चेंज हो जाता है एंड दोनों के ऊपर कॉम्प्लीमेंट प्लेस हो जाता है. फाइन. सो लेट्स अगेन सी टू इट द सेम पॉइंट. व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड? लेफ्ट हैंड साइड इज A intersection B होल कॉम्प्लीमेंट. और कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं? वी ऑलरेडी ब्रीफ यूनिवर्सल माइनस A intersection B. जब भी कॉम्प्लीमेंट लेना है, जिसका भी कॉम्प्लीमेंट लेना है, उसको यूनिवर्सल में से माइनस करते हैं. फाइन. दिस वी ऑलरेडी briefed in the last lecture. So universal minus universal is what? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 minus A intersection B is what? What is common? What is common in A and B? A and B में दोनों में क्या है? A intersection B में. So we have 2. Then we have what is common? No other element is common. 3 5 7 is not in this. Only 2. Fine. So now if I have to subtract this from this from this, so this minus this means all element of this which are not present in this. इसका कौन सा एलिमेंट इसमें प्रेजेंट नहीं है? सिर्फ 2 प्रेजेंट नहीं है. 2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, बाकी सारे एलिमेंट लिख देंगे. दिस माइनस दिस मीन्स 1 3 4 5 6 7 8 9. So this is my left hand side. This becomes my left hand side. I'll put a dash line out here, and now the right hand side is A complement union B complement. फिर से A complement means U minus A, और फिर यूनियन आ जाएगा. B complement को कैसे लिखते हैं? U minus B. फाइन. U में से A माइनस करें, इसमें से A माइनस करें, फिर से क्या क्या आएगा? क्या क्या नहीं आएगा? So U minus A means all element of this not in this. तो आपका 2 4 6 और 8 इसको छोड़ दे, बाकी सब आएगा. क्या क्या आएगा? 1 3 5 7 9 यूनियन. व्हाट इज U minus B? U minus B क्या करेंगे? ऑल एलिमेंट ऑफ U नॉट इन B. तो कौन कौन से एलिमेंट B? 2 3 5 7. तो 2
3 5 7 पे डॉट डाल देंगे, बाकी सबको लिख लेंगे. These dotted elements are already present. Leaving these, write all the elements. What are these elements? Are 1 1 4 6 8 9. 1 4 6 8 9. So now union means combine these two without repetition. Union means combine these two without repetition. क्या रहेगा? 1 3 4 5 6 7 8 9. Fine. Or if you see this left hand side is equal to this and this right hand side is equal to this. So these two answers, left hand side is 1 3 4 5 6 7 8 9 and this is also 1 3 4 5 6 7 8 9. So therefore left hand side is equal to right hand side. Hence proved that A intersection B complement is equal to A complement union of B complement. This is the second part of a De Morgan's law, and this is we are doing with the numerical numbers. Fine. This is very simple. Let's see how to do it. This particular point when he is asking in terms of a Venn diagram. Fine. Venn diagram में भी इस property को prove किया जा सकता है. This is given in question 5 of the same exercise. Exercise 1.5 question 5 is to be proved this concepts of a Venn diagram, this concept of a De Morgan's law with the help of Venn diagram. देखिए कैसे cover करते हैं. उसने इसको प्रूविंग के लिए नहीं बोला, वो ये कह रहा है कि इसका वेन डायग्राम ड्रॉ करें. व्हाट इज वेन डायग्राम ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. इसका वेन डायग्राम क्या होगा? ध्यान से देखिए. इफ आई हैव टू ड्रॉ अ वेन डायग्राम ऑफ दिस, फाइन. सो पहले हम लिखते हैं A B. This is A. If this I have to draw, this is the first part. So let's see what is A union B. This is A union B. A union B is all element of A and B. A union B means all elements of A and B. And what is A union B complement? A union, this is A union B. A union B complement. A union B complement means all the elements which are not present in A union B. Fine. A union B means element of A union B. This is black shading. Fine. And A union B complement is basically all the elements which are not present in this. तो इस ब्लैक पोर्शन को छोड़ के बाकी की वर्किंग कर देंगे. तो बाकी की वर्किंग क्या कर सकते हैं जी? हम इस ब्लैक को अगर छोड़ देंगे तो बाकी की वर्किंग क्या हो जाएगी? बाकी की वर्किंग या रेड वर्किंग आ जाएगी. A union B was black shading and A union B complement means other than black shading. Other than black shading, if I have to take, this is the red shading. Black shading is A union B and red shading is A union B complement. तो आप लिख देंगे आंसर. A union B complement is red shading. This is red shading. Fine. So this is basically answer of this is this. Now see how to, this is the left hand side of this. How to take the right hand side? A complement intersection B complement. Then is very important part. आप क्या करते हैं? This is A, this is B. First see what is A complement. A complement means all elements which are not in A. तो A में जो नहीं है, ये A है, this is B, this is A, this is B. All element which are not in A में जो एलिमेंट नहीं है उसको मैंने ब्लैक शेडिंग कर दिया जी ऐसे. Not in A. Fine. This I am taking A complement. Fine. Now A complement means
ए को छोड़ के बाकी सब में सबको शेडिंग कर देंगे, ए को छोड़ के बाकी सब में शेडिंग कर दी हमने थ्रू आउट। ए कॉम्प्लीमेंट मींस नॉट इन ए, तो ए को छोड़ देना, उसके अलावा बाकी सब, दिस इज शेडिंग रिप्रेजेंट्स ए कॉम्प्लीमेंट। अब आप देखिए बी कॉम्प्लीमेंट, ये बी कॉम्प्लीमेंट है ना, बी कॉम्प्लीमेंट कैसे आएगा? बी कॉम्प्लीमेंट की शेडिंग करते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन थी ए कॉम्प्लीमेंट की शेडिंग ऐसे की, और बी कॉम्प्लीमेंट की शेडिंग करते हैं ऐसे वर्टिकल लाइंस, ठीक है। तो बी कॉम्प्लीमेंट मींस अदर देन बी को नहीं करना, ये अब बी को नहीं करना, अब ये वर्टिकल लाइंस में दिस इज बी कॉम्प्लीमेंट, इसमें बी को नहीं करना, बी नहीं करना, ए कर सकते हैं, बी नहीं करना जी, फाइन। वी कैन डू दिस बट वी डोंट हैव टू डू द बी, फाइन। अब आप इसको ध्यान से देखें, ए कॉम्प्लीमेंट इज दिस शेडिंग and B complement is vertical shading. When I am saying A complement intersection B complement, that means common shading. Intersection means common shading. Common means double shading. Double shading. अब जब इसका इंटरसेक्शन लेना है तो आप देखो डबल शेडिंग कहां कहां पे है। डबल शेडिंग इज व्हाट इज डबल शेडिंग रीजन। अगर आप डबल शेडिंग रीजन मार्क करना चाहेंगे तो डबल शेडिंग रीजन को अगर मैं मार्क करना चाहूंगा तो डबल शेडिंग रीजन इज only this portion, that is which portion? Double shading region is my this portion. अगर मैं इसको देखूं तो डबल शेडिंग कहां कहां हुई है? डबल शेडिंग बच्चा इसके अलावा बाकी सब जगह हुई है, इस ये वाले पोर्शन को छोड़ के। देखिए यहां सिंगल शेडिंग है, ये नो शेडिंग, ये सिंगल शेडिंग, अदर देन आउटसाइड एवरीवेयर इज डबल शेडिंग। तो रेड पोर्शन इज डबल शेडिंग, ये रेड पोर्शन जो है ना ये सारा डबल शेडिंग है, रेड पोर्शन। सो डबल शेडिंग जहां हुई है इस वाले ब्लॉक में, यहां से भी डबल शेडिंग देख सकते हैं। और अगर मैं बोलूं डबल शेडिंग को मैंने रेड से लिखा है तो मेरा डबल शेडिंग वाला पोर्शन है, क्योंकि ये वाला पोर्शन में सिंगल शेडिंग है, सिर्फ वर्टिकल लाइंस है, यहां पे नो शेडिंग है, यहां पे हॉरिजॉन्टल लाइंस है, बाहर सब जगह डबल शेडिंग है। आप ध्यान से देखें, बाहर सब जगह डबल शेडिंग है, डबल शेडिंग डबल शेडिंग डबल शेडिंग, ये भी डबल शेडिंग है, जहां कट कर रहा है जी कट कर रहा है, डबल शेडिंग डबल शेडिंग डबल शेडिंग, सिंगल शेडिंग नो शेडिंग सिंगल शेडिंग। तो हमने ये वाला पोर्शन इसको छोड़ देना जी, बाकी सब सॉल्यूशन है। तो इन तीनों को छोड़ के अगर बाकी सब सॉल्यूशन है तो ध्यान से देखें जी, यहां पे भी क्या सॉल्यूशन था? रेड शेडिंग इज अ सॉल्यूशन। तो वो पोर्शन कहां पे आ रहा है? ध्यान से देखें, वो पोर्शन ये आ रहा है, ये ऐसे वाला पोर्शन को छोड़ के बाकी सारा पोर्शन सॉल्यूशन है, बाहर का सारा सॉल्यूशन है। इसमें भी देखिए क्या आ रहा है, ये रेड शेडिंग कहां आ रही है? ये वाले पोर्शन को छोड़ के, ये वाले पोर्शन को, इसमें भी ये वाले पोर्शन को छोड़ के बाकी सारा क्या सॉल्यूशन है। तो ये और ये दोनों सेम आ गई। तो A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। उसने बोला नहीं बराबर करने के लिए, बट अगर एग्जाम में आए प्रूफ दिस प्रॉपर्टी बाय वेन डायग्राम, तो आप ये वाले सिंबल बनाएंगे जी और ये वाले बनाएंगे। एज इट इज मेरी बुकलेट में ब्रीफ है, उसमें बहुत क्लियर शेडिंग दी हुई है जी, और यहाँ पे भी मैंने ब्रीफ कर दिया है। आप देखेंगे जो फाइनल आंसर आया है, यहाँ पे भी रेड शेडिंग है और यहाँ पे भी बाहर वाला रेड शेडिंग है। तो अगर मैं देखूं तो कहां वाला आंसर नहीं है जी, इस वाले पोर्शन में भी अगर हम देखें फाइनल में, ये आंसर नहीं है जी। तो ये इसके बाहर का सारा आंसर है। इफ आई सिंप्लीफाई लिटिल मोर, ठीक है जी। सो ये आंसर में ये पोर्शन नहीं आ रहा जी, दिस इज नॉट द आंसर, बाकी सारा शेडिंग इज द आंसर है। और इस वाले में भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला पोर्शन आंसर में नहीं आ रहा, बाकी सारा पोर्शन आंसर है जी। दिस पोर्शन इज नॉट देयर इन आंसर, रेस्ट ऑलवेज आंसर। तो आप देखेंगे दिस शेडिंग, फाइनल शेडिंग इज इक्वल टू दिस फाइनल शेडिंग, इज इज फाइन, ठीक है। नाउ सेम वे इफ आई हैव टू प्रूव द सेकंड पार्ट ऑफ दिस, that is A intersection B complement is equal to A complement union B complement. This part. Second part of De Morgan's law. तो कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर De Morgan's law में जरूरी है दोनों पार्ट प्रूव करना? Both these point consist of a De Morgan's law. तो जब भी De Morgan's law की बात की जाएगी तो हमको दोनों पॉइंट्स को रेफर करना पड़ेगा बच्चे, फाइन। लेकिन अगर अभी उसने 5th क्वेश्चन में बोला है इसका वेन डायग्राम अलग से बनाओ, इसका अलग से बनाओ, बट मैं इसका भी बना देता हूं, इसको बनाता हूं, दोनों को बराबर भी प्रूव कर देंगे, सो दैट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो वो पूछा नहीं है पर एग्जाम में अगर पूछा जाए
प्रूव वेन डायग्राम, प्रूव डिमॉर्गन्स लॉ बाय वेन डायग्राम, वो भी साथ में कवर होते हैं जी। लेफ्ट हैंड साइड, तो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड ड्रॉ करना इजी है क्योंकि सीधा इंटरसेक्शन लिया, उसको कॉम्प्लीमेंट ले लिया। राइट हैंड साइड ये भी थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि इस पर डबल शेडिंग देखनी पड़ती है और ये भी अलग अलग का कॉम्प्लीमेंट है, इसमें भी डबल शेडिंग देखना पड़ता है। तो राइट हैंड साइड पे ज्यादा फोकस करना है आपको। एग्जाम में पता है ध्यान क्या रखना है, जब हमको ये पता है कि ये टफ है ये इजी है, तो आपको ध्यान रखना है कि इससे आंसर निकाल के इसके बराबर लाना है। फाइन, अब जैसे देखिए ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी में क्या करेंगे, सबसे पहले इंटरसेक्शन देख लो जी, ये ए है ये बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या बनता है, व्हाट इज कॉमन इन ए एंड बी, व्हाट इज कॉमन इन ए एंड बी, दिस पोर्शन इज कॉमन, only this portion is common, so this is common. Fine, now what he is saying in next step is A intersection B जो कॉमन है, अदर देन दैट, तो यूनिवर्सल सेट में से ये माइनस कर दो। कॉम्प्लीमेंट कैसे आता है, यूनिवर्सल माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो इसको अगर मैं ये ब्लैक शेडिंग को हटा दूं तो फिर दूसरा आंसर क्या आएगा, अगर ये ब्लैक शेडिंग को हटा देते हैं, what is the next answer? Next answer is what? Next answer is this red shading, this red shading. Other than black shading, everything is answer. Because A intersection B is only black shading. A intersection B complement, which are not part of A intersection B. Fine. तो यूनिवर्सल माइनस दिस, तो पूरे यूनिवर्सल सेट में से, ये यूनिवर्सल सेट है, पूरे यूनिवर्सल सेट में से इसको माइनस कर दिया, तो क्या रह गया, ये रेड पोर्शन रह गया बस। तो उस केस में हम बेसिकली क्या कहते हैं, माय रेड शेडिंग इज द सॉल्यूशन, रेड शेडिंग। ठीक है, अब आप सेम वे में अगर राइट हैंड साइड करते हैं इसका, A कॉम्प्लीमेंट, दिस इज ए को छोड़ के सभी को आप वर्किंग कर लेंगे, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन। ए कॉम्प्लीमेंट को फिर से मैं हॉरिजॉन्टल लाइन से लिख रहा हूं जी, फाइन, और बी कॉम्प्लीमेंट को फिर से वर्टिकल लाइन से लिखेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट आ गई, ए कॉम्प्लीमेंट मींस एलिमेंट विच आर नॉट इन ए, तो ए कॉम्प्लीमेंट को हम कैसे लिखते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट मींस यू माइनस ए, तो पूरा यूनिवर्सल सेट ये है, उसमें से ए को माइनस कर दिया। सो आप सिर्फ ए रह जाएगा जी, दिस इज ओनली ए लेफ्ट, उसके अलावा बाकी सब शेडिंग हो जाएगा जी, फाइन। अब नाउ ही सेज बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट में आई एम राइटिंग अ शेडिंग लाइक दिस, फाइन, दैट्स अ वर्टिकल लाइन। तो बी कॉम्प्लीमेंट मींस बी को छोड़ना है। अब बी को, बी वर्टिकल लाइन बी में नहीं आएंगी, ये बी सेट है, दिस इज बी सेट, तो वर्टिकल लाइन बी में नहीं आएंगी, तो वर्टिकल लाइन कहां आएंगी, वर्टिकल लाइन बी के अलावा बाकी सब जगह में आएंगी, दिस एवरीवेयर वी हैव दिस वर्टिकल लाइंस, बी को छोड़ के, बिकॉज दिस बी कॉम्प्लीमेंट इज वर्टिकल लाइंस, सो बी में वर्टिकल लाइंस नहीं आएगी, बाकी सब में आएंगी, फाइन। तो फाइन, नाउ ए कॉम्प्लीमेंट इज दिस लाइंस हॉरिजॉन्टल, बी कॉम्प्लीमेंट इज वर्टिकल लाइंस, यूनियन ऑफ दिस, नॉट इंटरसेक्शन, यूनियन। अब आप देखेंगे जब इंटरसेक्शन था तो डबल शेडेड आंसर आया था, जब यूनियन है तो ऑल शेडिंग आंसर आएगा, बिकॉज ऑफ यूनियन ऑल शेडिंग इज द सॉल्यूशन, ऑल शेडिंग इज सॉल्यूशन बाय यूनियन। यूनियन मींस जो सिंगल बार भी आया है, यूनियन में क्या आता है, जो ए में है वो भी यूनियन में आता है, जो बी में है वो भी यूनियन में आता है, जो ए और बी दोनों में है वो भी यूनियन में आता है। तो यूनियन में क्या करना है, ऑल शेडिंग, ऑल शेडिंग मींस सिंगल शेडिंग भी लेंगे, डबल शेडिंग भी लेंगे, तो कौन सा आएगा जी, क्या सॉल्यूशन नहीं है। तो आप देखेंगे कि जैसे रेड शेडिंग सॉल्यूशन है, फाइन फाइन, तो हमारा इस वाले पोर्शन में भी ऑल शेडिंग सॉल्यूशन है, तो आप ये देखेंगे कि ओनली दिस पोर्शन इज नॉट अ सॉल्यूशन, बाकी सारा सॉल्यूशन में आ रहा है। ऑल शेडिंग में सिंगल शेडिंग भी आएगा, ये भी सिंगल शेडिंग है, ये नो शेडिंग है, ये डबल शेडिंग है, तो ऑल शेडिंग मींस वन और डबल शेडिंग इज द सॉल्यूशन, फाइन। और इस केस में भी देखें, लेफ्ट हैंड साइड में देखें, ओनली रेड शेडिंग कौन सा है, रेड शेडिंग इज दिस पोर्शन, इफ आई सी दिस इज दिस पोर्शन, ठीक है। रेड शेडिंग में सिर्फ ये वाला पोर्शन नहीं लेना, बाकी सब में रेड शेडिंग आ गई, और दिस विल बी इक्वल टू दिस,
इसमें भी इफ आई रिमूव दिस दैट इज द सॉल्यूशन, और इस वाले केस में भी मेरा रेड शेडिंग क्या था, इफ आई रिमूव दिस पोर्शन दैट इज द सॉल्यूशन. एंड दिस इज अगेन वेरी वेरी नीटली एक्सप्लेन इन द 1A बुकलेट क्वेश्चन नंबर 5, जिसके अंदर एक एक ब्रीफ किया है, पर आपने ध्यान रखना है. इससे पिछले वाले क्वेश्चन में राइट हैंड साइड में इंटरसेक्शन था जिसमें कॉमन शेडिंग था सॉल्यूशन में. इस केस में यूनियन है, यूनियन में ऑल शेडिंग, वन टाइम भी और डबल टाइम भी. तो आप देखेंगे दोनों केस में हमारा जो आंसर है वो अदर देन दिस पोर्शन, ये वाले पोर्शन को छोड़ दें, सिर्फ ये वाले पोर्शन को छोड़ दें, बाकी सब सॉल्यूशन है, सिर्फ ये वाले पोर्शन को छोड़ दें. दैट्स ऑल इज. और इस वाले केस में भी नो शेडिंग, सारी शेडिंग में सिर्फ इस वाले पोर्शन को छोड़ दें, बाकी सारा सॉल्यूशन है. इफ आई लीव दिस rest all is solution, and this case maybe if I leave this rest all is solution. So this is a very important part. Fine. हल्का सा किसी को भी थोड़ा सा टेक्निकली कुछ दिक्कत आती है, इसको रिवाइंड करके देखना, मुझसे इवनिंग क्लासेस में अपडेट कर सकते हैं. टू रेफर माय नोट्स साइड बाय साइड. This is all for this lecture, and we are over with all the question of exercise 1.5. See you in the next class with next working of exercise 1.6. Bye bye. See you in the next class. Thank you very much.